Ignited Minds Tutorials recently released a comprehensive video on YouTube, covering the entire math syllabus for CBSE and Maharashtra Board. This video aims to provide students with a thorough revision of the topics found in the Class X Cert Exemplar Mathematics textbook. The video covers a wide range of topics, including but not limited to algebra, geometry, trigonometry, and statistics. Each topic is carefully explained, with step-by-step solutions to numerous problems from the Cert Exemplar. By watching this video, students can gain a better understanding of the concepts and principles in the textbook. It serves as a valuable resource for those preparing for their board exams or wanting to strengthen their math skills. Ignited Minds Tutorials has always been committed to providing high-quality educational content to students. Their videos are designed to simplify complex concepts, making them accessible and easy to grasp. This maths revision video is a valuable tool for students who want to excel in their exams or simply enhance their knowledge of mathematics. With clear explanations and numerous problem-solving examples, it serves as a comprehensive guide for students studying Class X Cert Exemplar Mathematics. So, head over to the Ignited Minds Tutorials YouTube channel and start revising math using this educational video. Boost your confidence and ace your exams with the help of this knowledge-packed resource. चलो भाई साहब इस सवाल को करना है। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस इज ₹100. 3 times द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 15 more than द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स. क्या करोगे भाई साहब? सिंपल क्या करेंगे? ओके, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pen, let cost of 1 pen be ₹X and cost of one pencil box be ₹Y. ठीक है? The cost of 4 pens, that is 4X, and 4 pencil boxes 4Y is equal to 100. अपन इसको डिवाइड करते हैं किससे? 4 से. तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई? 25. ठीक है, x प्लस y की वैल्यू हो गई भाई साहब 25. क्लियर पीपल? ठीक है, ओके. 3 times द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो 3 times द कॉस्ट ऑफ अ पेन मतलब 3x is 15 more than the cost of a pencil box. तो पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना है भाई साहब? y. 15 more than that of a pencil box. ठीक है, 3 times the cost of a pen, that is 3x, is 15 more than the cost of a pencil box, y plus 15. तो अपन कर लो भाई साहब इसको, 3x minus y is equal to 15. ये हो गया आपका भाई साहब दूसरा वाह इक्वेशन वाह. ठीक है, so this is people what equation 1 and this is equation 2. so यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, इधर अगर हम लिखते हैं x plus y is equal to 25, that is equation 1. अपन कर देंगे इसको एडिंग. ठीक है, एडिंग में ये दोनों कैंसिल. 4x is equal to कितना भाई साहब? 40. तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी? 10. ठीक है, x की वैल्यू हो गई 10. सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, substituting in equation 1, x plus y is equal to 25, that is 10 plus y is equal to 25. so therefore y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 15. ठीक है, क्लियर? ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं? therefore cost of 1 pen is ₹10 and cost of 1 pencil box is ₹15. Are we clear on this one people? समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. सही जा रहे आप लोग, सही जा रहे. Find the altitude of an equilateral triangle of side 8 centimeter. कैसे निकालोगे? सुस्ती के बारे ऑल्टीट्यूड. अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई साहब. देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भाई साहब 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वा 8 सेंटीमीटर वा. ठीक है,
ये हो गया परपेंडिकुलर इस पे, परपेंडिकुलर इस पे, समझ में आ रहा है ये? ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a²। और अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखेंगे इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, ठीक है? तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है? तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है? तो 8 और ये भाई साहब कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो गई? बच्चा पार्टी बोलो ना, बोलो, 2√3 इंटू 2, सो दैट विल बी हाउ मच? 4√3। h की वैल्यू हो गई भाई साहब 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पेपर हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, इसको कौन करेगा? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई साहब? y इज इक्वल टू एक्स, 3y इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको आपको ग्राफिकली वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस मतलब ये तीनों लाइन जहां पे मीट हो रहे हैं एक दूसरे से, इसको आपको वर्टिसेस निकालने हैं, ठीक है? बहुत आसान सा सवाल है रे, कहां सर चकरा रहे हो? देखो देखो देखो, यहाँ पे अपन पहले क्या करेंगे? ग्राफ निकालेंगे भाई साहब, ग्राफ। अच्छा, आ गया भाई साहब 1 नंबर। साहिल मुनकर, इधर उधर मत देख, इधर उधर मत देख, दिख रहा है तो इधर से देख। ठीक है? y इज इक्वल टू एक्स, इस वाले ग्राफ को कैसे बना लेंगे भाई साहब? y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स, 3 वैल्यू फटाफट डालिए भाई साहब यहाँ पे, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके ओके ओके, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है ना भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश शाबाश, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या हो गया? देखो x की वैल्यू, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स में ये x की, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू डालें और यहाँ पे y, x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 0 1 1 -1 -1, सिंपल भाई साहब, है ना? तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए? 0 0 1 1 एंड -1 -1, ठीक है? चलिए प्लॉटिंग कर लेते हैं भाई साहब फटाफट से। यहाँ पे ये हो गया भाई साहब आपका 1 1, है ना? ये हो गया -1 -1, ठीक है? और ये हो गया भाई साहब आपका, सॉरी, ये 0 0, ये -1 -1, ठीक है? तो अगर हम प्लॉटिंग करते हैं इसको, ठीक है? तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका? 0 0, ये हो गया आपका प्लॉटिंग, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, -1 -1 0 0, और ये हो गया भाई साहब आपका 1 1, ठीक है? क्लियर है? y इज इक्वल टू एक्स हो गया भाई साहब। अभी आते हैं हम दूसरे वाले पे, दैट इज 3y इज इक्वल टू एक्स। मतलब क्या भाई साहब? 3y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स बाई 3, है ना? तो यहाँ पे x की वैल्यू डालो, यहाँ पे y की वैल्यू डालो, बताओ ना, बताओ कहाँ पे जाएगा ये? क्या ये 0 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा ना भाई साहब, 0 से जाएगा। और 2 की वैल्यू मत ले लेना, 1 की वैल्यू मत ले लेना, ठीक है? क्या लोगे? 3 ले लो, सीधा 3 ले लो। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, ठीक है? और बोलो भाई साहब -3 ले लो, -1, समझे 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 कि नहीं भाई साहब? ठीक है? तो ये हो गया 0 0 3 बना, और ये हो गया भाई साहब -3 -1, ठीक है? तो 0 0 यहां से तो जाएगा ही भाई साहब, 3 1, ठीक है? ये हो गया 3 1 3 1 हो गया भाई साहब, ये हो गया 0 0, ये हो गया 3 1, और यहाँ पे हो गया -3 -1,
ये हो गया -3 और ये हो गया भाई साहब आपका -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका -3 -1। समझम। तो इन तीनों पॉइंट्स को भाई साहब कनेक्ट करते हुए ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गया आपका क्या 3y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया भाई साहब आपका 3y इज इक्वल टू एक्स वाला, है कि नहीं, समझो कि नहीं भाई साहब। और क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो आते हैं हम भाई साहब इस पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 पे आते हैं भाई साहब। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी रे, 8 माइनस एक्स वाह, ठीक है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे है आपका y, ठीक है। चलो x की वैल्यू 1 ले लो भाई साहब, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंबा चला जाएगा, 3 लेते हैं, 3 लेते हैं, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 5, x की वैल्यू लेते हैं भाई साहब अपन 4, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब 4, और x की वैल्यू लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। सो आपके कोऑर्डिनेट वह कहाँ जाएंगे रे, ये हो जाएगा आपका 3 5, ठीक है। दिस विल बी 3 5, दिस विल बी 4 4 एंड दिस विल बी अल्टीमेटली 5 3, ठीक है। तो 3 5 ये हो गया 3 और ये हो गया भाई साहब आपका 5, ठीक है। दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो ये हो गया आपका 3 5, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका 4 और 4, ठीक है। ये एक्चुअली में ये 4 4 से ही जाएगा, ये जाओ ठीक से जाओ, शाबाश, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 4, दैट इज हाउ मच 4 4, क्योंकि y और y बराबर है, y और x बराबर है, 5 और 3, ये हो गया भाई साहब आपका 5 और ये हो गया 3, तो दिस विल बी 5 3, ठीक है। अगर इसको हमने भाई साहब एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, क्लियर है पीपलम। ये बन गया आपका ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। तो वर्टिसेस क्या क्या हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो वर्टिसेस, एक का वर्टिस कितना हो गया बोलो, बोलो ना बोलो, एक हो गया 4 4, दूसरा हो जाएगा ये वाला 0 0, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, 6 2 होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में 6 2 ही होना चाहिए, ये होना चाहिए वैसा, है ना, 6 2 ही होगा, ठीक है। सो दिस विल बी 6 2, क्लियर है। ध्यान ये देना है कि ये जो आपने निकाला है ये तीनों इक्वेशन को फुलफिल करेगा। क्या 4 4 इसको फुलफिल कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स, इसको वैसा फुलफिल कर रहा है क्या, y इज इक्वल टू 4 4, नहीं इसको नहीं फुलफिल करेगा, इसको फुलफिल करेगा। देखो y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, तो यहां पे देखो दोनों लाइन मिल रहे हैं, कौन से, y इज इक्वल टू एक्स और 3y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स 4 4, और ये वाला कौन सा था भाई साहब आपका, सॉरी ये वाला है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ना, x प्लस वाई, ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो इसको लेंगे और इसको लेंगे तो कौन देखो दोनों भी मिल रहा है, यहाँ पे 4 4 दोनों को फुलफिल कर रहा है ना। अभी आते हैं 0 0 पे, 0 0 पे कौन सी दो लाइंस दिख रही हैं आपको, y इज इक्वल टू एक्स और 3y इज इक्वल टू एक्स, क्या 0 0 दोनों को फुलफिल करेंगी, है ना। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, सो ये दोनों भाई साहब सही है। 6 2 देख लो भाई साहब, 6 2 किसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, 6 2 है भाई साहब आपका 3y इज इक्वल टू एक्स एंड ये वाला भाई साहब, ठीक है, 3y इज इक्वल टू एक्स, 6 2, सॉरी किधर गया भाई साहब 6 2, नहीं y इज इक्वल टू एक्स में नहीं आएगा, 6 2 भाई साहब किसके किस में आ जाएगा, इसमें 3y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, कहाँ गया भाई साहब आपका 6 2, 3y, हाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 3y इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पे हो रहा है, देखो 6 प्लस 2 8 आ रहा है और यहाँ पे y इज इक्वल टू 6/3, तो कितना आ जाएगा 2, तो दोनों को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर 3 पॉइंट्स विच आर करेक्टम, ओके 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 भाई साहब। अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट, ओके ओके ओके। तो अपना भाई साहब यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट बल्ब है
दैट इज फिक्स्ड ऑन अ पोल, दिस इज बेसिकली अ पोल, और ये कितना है भाई साहब आपका 6 मीटर है ना, ये हो गया आपका 6 मीटर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ पोल, दिस इज अ पोल, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, लेट्स से ये हो गया सी, ठीक है। अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड, तो यहां पे बल्ब है भाई साहब आपका, ठीक है, द बल्ब इज समवेयर हियर। इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर, ठीक है, तो अ वुमन ऑफ हाइट, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ वुमन ऑफ हाइट, इसका हाइट कितना दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर, और इसका शैडो भाई साहब कितना है, शैडो है 3 मीटर का, है ना, तो शैडो तो हमेशा लाइट के ऑपोजिट में ही होगा। सो दिस शैडो लेंथ इज हाउ मच पीपलम, दिस इज 1.5 एंड दिस इज हाउ मच, अरे बोलो ना बोलो, 3 मीटर वाह, ठीक है। हाउ फार इज शी अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, समझे कि नहीं, ए देखो देखो, ये एक्स वाई हो गया भाई साहब आपका वुमेन, ठीक है, क्लियर है, एक्स वाई इज द वुमेन एंड दिस इज हर शैडो 3 मीटर, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ए एक्स, इसको आपको निकालना है, कैसे करेंगे भाई साहब आप, बोलो ना बोलो, ठीक है, तो आप पहले आप इसको निकाल लीजिए, ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल आप निकाल लेते हैं तो आप भाई साहब इसमें टैन ये वाला एंगल कर सकते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल, तो दिस इज बेसिकली व्हाट द वुमेन, दिस इज द वुमेन एंड दिस इज व्हाट द शैडो, ठीक है, दिस इज द शैडो। सो इन ट्रायंगल कौन सा भाई साहब, एक्स वाई बी, इन ट्रायंगल एक्स वाई बी व्हाट कैन बी राइट, आपको ये वाला मालूम है, ये वाला मालूम है, तो tan b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, सो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 1.5 मीटर और बेस कितना है भाई साहब 3 मीटर, सो दैट इज हाउ मच 1/2, तो tan b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी, कितनी हो गई 1/2। अभी हम आते हैं कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, tan b की वैल्यू कितनी, tan b की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका AC बाई AB, AC बाई AB, तो tan b की वैल्यू यहां पे कितनी है 1/2, AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 और AB है ना, AB, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 12, AB की वैल्यू हो गई भाई साहब 12, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, AB की वैल्यू हो गई 12, जिसमें से इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो AX की वैल्यू कितनी हो जाएगी AB माइनस BX, तो AB की वैल्यू हो गई 12, 12 माइनस BX दैट इज 3, सो दैट विल बी हाउ मच 9, तो AX की वैल्यू कितनी हो गई 9 मीटर्स, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द वुमेन इज 9 मीटर फ्रॉम द पोल, द वुमेन इज 9 मीटर फ्रॉम द पोल, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, चलिए इसमें और भी बाकी है ना, बढ़िया 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 भाई साहब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कौन से सवाल पे थे अपन, ये स्ट्रीट बॉल ना, चलिए भाई साहब तीसरा वाला सवाल उठाते हैं, for which values of A and B the zeros of the equation, that is zeros मतलब होते हैं रूट्स, ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, और ऑल्सो द zeros of the polynomial that is px is equal to x raised to 5 minus x raised to 4 minus 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b, कंटिन्यूअस यहां पे कर रहा which zeros of px are not the zeros of qx, चलो भाई साहब इसको करना है, for which values of a and b are the zeros of this also the zeros of this, इसका जो रूट आएगा इसका रूट सेम होगा, बताइए कैसे करेंगे इसको, ऐसे समझो इसको, ठीक है, आपको मैं दिया मैंने कोई 2, ठीक है, सॉरी 8 और लेट्स से 2, ठीक है, ये चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है, आपसे मैंने पूछा है कि भाई साहब 4 को
मैं किस नंबर से डिवाइड करूं और 8 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 0 आवे? 4 से ही डिवाइड कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो अगर मैंने 4 को डिवाइड किया तो वो हो जाएगा, तो यहां पे भी वही कर लो भाई साहब, इसको इससे डिवाइड कर दो, तुमको मिल जाएंगे क्या? फैक्टर्स मिल जाएंगे तुमको। इसका फैक्टर इन टर्म्स ऑफ दिस मिल जाएगा, इसका फैक्टर इन टर्म्स ऑफ दिस मिल जाएगा, और उससे तुम जीरोस निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है देखो, x रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस 4x का क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b, ठीक है, क्लियर है। इसको तुम डिवाइड कर दो भाई साहब इससे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, क्लियरम, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे x रेज टू कितना हो जाएगा वैसे स्क्वायर, तो दिस विल बी हाउ मच, x रेज टू 5 2x स्क्वायर इनटू हाँ ये हो गया आपका भाई साहब 2x रेज टू 4 और प्लस ax का स्क्वायर, है ना, प्लस ax का स्क्वायर कितना ही आ जाएगा आपका यहाँ पे भाई साहब। सो दिस विल बी हाउ मच, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3 प्लस a एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस x कर दो भाई साहब, तो ये हो गया आपका x रेज टू 4 माइनस कितना हो जाएगा ये 2x क्यूब और ये हो गया आपका भाई साहब ax तो प्लस है, प्लस ax इधर होगा 3x है ना ये, ठीक है। ओके ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, माइनस 4 प्लस 2 ये हो गया माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस a एक्स, ठीक है। ओके यहाँ पे भाई साहब प्लस ये हो गया माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया आपका माइनस 2 एक्स क्यूब और 2 इंटू 2 तो ये हो गया आपका 4 एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी हाउ मच माइनस 4 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू ए तो ये हो गया आपका माइनस 2a, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 प्लस a प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस a इंटू एक्स माइनस 2a। अभी अगर ये इसका फैक्टर है तो ये वाला रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0, तो 7 प्लस a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 प्लस a इंटू एक्स माइनस 2a, दिस हैज टू बी 0 अगर ये इसका फैक्टर है तो, ठीक है। बताओ भाई साहब कैसे हो जाएगा इसका फैक्टर? फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b द जीरोस आर ऑफ द जीरो आर ऑल्सो द जीरोस, ये दोनों के जो रूट्स होंगे, रूट्स मतलब क्या, इन दोनों के कुछ ऐसे कॉमन वैल्यूज जिनकी वजह से दोनों का जीरो आए, ठीक है, दोनों का जीरो है। तो अपन ने इसको अगर डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसको जीरो लगाया, तो यहाँ पे भाई साहब कैसा कंडीशन हो जाएगा बताओ? ये कभी हो पाएगा? 7 प्लस a तो 7 2 भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 प्लस a इंटू 2a, इसके फैक्टर में से हमको 3 प्लस a चाहिए, ठीक है। इसको जरा पेंडिंग रखो भाई साहब, ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल लग रहा है, विल डू इट वन टाइम। There are some students in two examination halls A and B. To make the number of students equal in each hall, ठीक है, 2 एग्जामिनेशन हॉल है भाई, ठीक है, 2 एग्जामिनेशन हॉल है,
there are some students in the two examination hall. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. इक्वल बनाने के लिए, ठीक है. तो समझ लो यहाँ पे x स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे y, ठीक है. तो अपन लिख देते हैं लेट देयर बी x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x number of students in hall A and y number of students in hall B, ठीक है. लेट देयर बी x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A ओरिजिनली. अभी जब आपने 10 स्टूडेंट्स x से माइनस किए, x से आपने कितने माइनस कर दिए 10 स्टूडेंट और इनको भेज दिया y के पास, तो y के पास b के पास कितने हो गए +10 हो जाएगा. ये दोनों बराबर है. देखो 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम हॉल A टू B टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल भाई साहब. तो इसका मतलब अपन का इक्वेशन पहला क्या बन जाएगा, x minus 10 is equal to y plus 10. So we can write this as x minus y is equal to 10 plus 10, that is 20. ये आ गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन. This will be your first equation, ठीक है. If 20 students are sent from B to A, तो B to A अगर 20 स्टूडेंट्स भेजा तो ये कितना हो जाएगा y minus 20 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x था प्लस 20 हो जाएगा. ओरिजिनली कितना था यहाँ पे x और ओरिजिनली कितना था y. तो B स्टूडेंट अगर हमने भेज दिए B से तो कितना हो गया y minus 20 और B स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड हो गया तो x plus 20. If 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. तो x minus 10 अभी क्या हो जाएगा, this will be double the number of students in B, ठीक है, y plus 20. So this will be how much, x minus 10 is equal to 2y plus 40, 2y plus 40. So that will be x minus 2y is equal to 40 plus 10, that is 50. 40 plus 10, that is 50, ठीक है. फिर क्या हुआ, हाँ सॉरी 20 होगा ना यहाँ पे, दिस विल बी 20. ये हो गया भाई साहब आपका 20, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 20. कहाँ कर रहे हैं भाई साहब हम यहाँ पे, 2y माइनस 20. सो दिस विल बी x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 20. सो दैट विल बी 2y माइनस 40 और यहाँ पे हो गया x प्लस 20. सो दिस विल बी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20. तो ये कितना हो गया माइनस 60, है ना. x प्लस 20 इधर हो गया और y माइनस 20, 2 इंटू वाई माइनस 20, तो इधर माइनस 20 आ गया आपका भाई साहब सेकेंड इक्वेशन. तो अगर इसको भाई साहब अपन लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पे करते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग. सो दिस विल बी माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल. 2y माइनस y दैट इज y, 60 प्लस 20 दैट इज 80. तो y की वैल्यू हो गई भाई साहब 80. सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. तो x माइनस y की वैल्यू भाई साहब कितनी है 20. तो x माइनस 80 की वैल्यू है भाई साहब 20. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है. सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A is equal to, number of students in A is equal to 100 and in B it's equal to 80. सिंपल हम समझम. ओके. ओके, a window in a house is h meters above the ground. चलिए इसको निकालते हैं भाई साहब. ओके, यहाँ पे देखो एक हाउस दिया हुआ है, अ विंडो, तो ये विंडो है बेसिकली, दिस इज बेसिकली द विंडो, दिस इज द विंडो. अ विंडो इन अ हाउस इज h मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है.
So this is h meters above the ground, h meters above the ground. From the window, the angle of elevation and depression of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of the lane. अच्छा जी, ए बाबा ये तो बहुत बड़ा. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका विंडो, ये हो गया h मीटर का भाई साहब. ठीक है, द विंडो ऑफ हाउस h मीटर. फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेन. तो ऑपोजिट साइड ऑफ द लेन में एक और घर भाई साहब. The angle of elevation depression of the top and bottom of another house situated in the opposite side of the lane. Elevation and depression. From the window. अच्छा from the window है. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे कोई और है तो इसका elevation. साहिल मुनकर, ये विंडो है भाई साहब, इसका थोड़ा सा अपन छोटा कर दे भाई साहब. टर टर टर. ओके, इसका एलिवेशन समझ में आ रहा है भाई साहब. ये वाला एलिवेशन है, देखो दिस इज द एलिवेशन. ठीक है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड वाला हाउस है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द विंडो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज अल्फा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल. ठीक है, so this would be angle of depression. This angle is how much? Beta. ठीक है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? बीटा. ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस. तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ द अदर हाउस निकालना है भाई साहब, हाइट ऑफ द अदर हाउस. तो लेट्स से अपन ने इसको h डैश माना हुआ है. ये वाला भाई साहब आपका कितना है? h है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज दिस मच. अ विंडो ऑफ अ हाउस, इसका दिया हुआ है h, ये वाला भाई साहब हो गया बीटा, ये वाला हो गया भाई साहब आपका अल्फा. सो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज h इंटू 1 प्लस tan अल्फा काट बीटा. चलो भाई साहब जल्दी करना है, कैसे करेंगे इसको? बोलो 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 जल्दी, कैसे करेंगे इसको? पहले तो भाई साहब आप नेमिंग कर लो यहाँ पे. ठीक है, सो दिस विल बी ए बी सी डी ई. ठीक है, ऐसा नेमिंग कर लेते हैं भाई साहब. ठीक है, ओके. सो एक भाई साहब ये वाला एंगल हो गया. अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर. तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं h मीटर अबव द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. तो आप बताओ भाई साहब आपका, लेट्स से ये एक्स डी, तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू एक्स डी and this is equal to h. ठीक है, okay. Now talk about this triangle. In triangle ABC, in triangle ABC, tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? AB by BD है कि नहीं? क्लियरम. tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AB by BD, that is how much? h upon BD. तो अपन यहाँ पे therefore BD की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? BD की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन tan बीटा, ऐसा लिख सकते हैं बोलो. BD की वैल्यू हो गई h अपॉन tan बीटा. ओके, अब हम इस पे आते हैं. देखो यहाँ पे देखो AB और XD बराबर है, और दूसरा क्या होगा? ये AX और BD बराबर होगा. AX इज इक्वल टू BD क्लियरली, क्योंकि ये भाई साहब क्या है? सब रेक्टेंगल ही क्यों है? सिंस क्वाड्रिलैटरल ABDX इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, ये रेक्टेंगल ही है भाई साहब. ओके, अभी हम इस वाले पे आते हैं. ठीक है, कौन से ट्रायंगल पे? इन ट्रायंगल
ये वाला समझ में आ रहा है? देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है, तो पहली बात तो एंगल एक्स ए डी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए और ए डी बी, ठीक है। अपन यहां पे बोल सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू बीटा वाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ओके, अभी हम इस पे आते हैं। देखो इन ट्राइंगल कौन सा, ए एक्स ई, ट्राइंगल ए एक्स ई, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा की वैल्यू होगी ई एक्स बाई ए एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो ई एक्स बाई बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan अल्फा, सॉरी tan बीटा, हाँ tan, हाँ ठीक है। तो यहां पे tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बोलो, ई एक्स, अभी बी डी की वैल्यू तुमने यहां पे निकाली थी कितनी, h अपॉन tan बीटा, तो यहां पे लिख दो भाई साहब h अपॉन tan बीटा, तो ये चला गया ऊपर भाई साहब ई एक्स tan बीटा अपॉन h, ठीक है, ई एक्स tan बीटा अपॉन h। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी h tan अल्फा अपॉन tan बीटा, समझ में आ रहा है। ई एक्स को हमने इधर ही रखा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये h tan अल्फा अपॉन tan बीटा, ये हो गया आपका ई एक्स, ठीक है। और एक्स डी की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई साहब, ए बी की वैल्यू जो है वही एक्स डी की वैल्यू है ना। तो आपका अब बताइए ना, बताइए आपका हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग कितना है, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज हाउ मच, ई डी, और ई डी मतलब क्या होगा बोलो, ई एक्स प्लस एक्स डी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई एक्स प्लस एक्स डी किसके बराबर है, देखो एक्स डी आपका ए बी के बराबर है, ई एक्स प्लस ए बी। तो अभी आप वैल्यूज देखिए वैसे, हम यहाँ पे ई एक्स की जगह पे लिखेंगे क्या, एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एच, तो इनमें से आपने एच को कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा बोलो, टैन अल्फा टैन बीटा प्लस 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हमने इधर लिखा, इसको अपन ने लिखा टैन अल्फा, और 1 बाई टैन बीटा कितना होता है, कॉट बीटा, तो ये हो गया आपका कॉट बीटा, बस हो गया, ठीक है। दिस विल बी द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दिस विल बी द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, कौन हो शक की गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ा जाए भाई साहब, मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते हुए, बहुत बढ़िया। लाइफ में इतना सुख चैन है ना तुम्हारे, बाप रे बाप, सर पे तलवार लटक रही है और भैंस की तरह सो रहे हैं यहाँ पे। टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है, हैव रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो आपके भाई साहब ये तीसरा सर्कल कहां से आ गया वक्त, टू सर्कल्स हैं भाई साहब आपके 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो आपका एक हो गया O और दूसरा कितना है भाई साहब आपका O डैश, ठीक है। टू सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश ऑफ रेडिया 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P एंड Q, तो 2 पॉइंट्स पे ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट OP एंड O डैश P आर टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स, ठीक है, OP एक मिनट भाई साहब, टू सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P एंड Q सच दैट OP, ये इसके ऊपर टेंजेंट है, अच्छा जी, ये क्या हो रहा है, तो ये भाई साहब इसके ऊपर अगर इसको इसके ऊपर टेंजेंट होना है तो इसको थोड़ा सा तो भाई साहब कम होना ही पड़ेगा ना भाई साहब, देखो देखो देखो, ठीक है। ये हो गया OP भाई साहब,
पॉइंट्स पी एंड क्यू ना, तो ओ पी जो है ये कैसे हो सकता है भाई साहब, ये तो इधर से ही आएगा ना। हाँ समझा, पी क्यू तो कॉर्ड है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये कैसा हो सकता है भाई साहब, एक पे ये क्या गड़बड़ सवाल है भाई साहब। ओपी इस पे कैसे टेंजेंट हो जाएगा? हाँ किसका? ओ और डैश सेंटर दिया हुआ है ना, तो ओ डैश पी इस पे कैसे टेंजेंट हो सकता है, ये तो अंदर से ही जाएगा ना। कौन सा? इसका टेंजेंट रहेगा ओके ओ डैश पी। हाँ ऐसे ओ देख दिया हुआ है ना, ओ और ओ डैश, ओ पी एंड ओ डैश पी आर टेंजेंट्स, कैसे हो सकता है भाई साहब ये? चलिए करते हैं। यहाँ पे भाई साहब आपका इसको अगर हमने जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया तो ये दोनों आपस के टेंजेंट्स हैं, मतलब ओ डैश पी इस पे टेंजेंट है और ओ पी इस पे टेंजेंट है। पता नहीं भाई साहब ये कैसे सवाल होगा, होना तो बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। खैर चलिए भाई साहब, यहाँ पे अगर टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है और ये इस पे टेंजेंट है, तो ये हो गया रेडियस और ये हो गया इस पे टेंजेंट, तो ये वाला एंगल 90, ये रेडियस और इस पे टेंजेंट, ये वाला एंगल 90। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो क्या करना है इसमें भाई साहब, एक का है कितना 3 सेंटीमीटर और एक का 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस एंड टेंजेंट, तो देखो ये वाला रेडियस है और ये वाला जो है इस पे टेंजेंट है, और ये वाला रेडियस और ये वाला टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ, पहली बात तो आपको यहाँ पे पी क्यू का फाइंड करना है ना, लेंथ का करना है, पी क्यू का लेंथ फाइंड, तो ओ डैश कितना हो जाएगा? देयरफॉर ओ पी ओ डैश इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है कि नहीं? क्योंकि एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, रेडियस एंगल ओ पी ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? वाई रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली राइट एंगल बनाते हैं, है ना? क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे ओ ओ डैश का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ओ डैश का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया भाई साहब? 4 का स्क्वायर, तो ओ ओ डैश का स्क्वायर इतना हो गया, ओ ओ डैश कितना हो गया भाई साहब? 9 + 16 दैट इज 25, इसका अंडर रूट दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है? क्लियर है? अभी हमको भाई साहब पी क्यू निकालना है।
देखो अगर हमने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो आप देखोगे ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? ये रेडियस, ठीक है, ये कॉमन साइड हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी बेसिकली कॉमन साइड। और क्या और क्या और क्या भाई साहब? अरे यार ये कुछ मामला फंस ही नहीं रहा है भाई साहब। हाँ लेकिन ये वाला इसको हाफ में डिवाइड करेगा। लाइन एक्चुअली थियरम है आपका कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ट्राइंगल्स बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड, ये आपका थियरम है, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू intersecting circles bisects the common chord, अभी ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब समझ लो ये अगर x है तो ये वाला भी भाई साहब कितना हो जाएगा? x, ठीक है। अभी अपन ने इसको अगर ओ पी लेट्स से वाई लिया, वाई तो इस वाले ट्राइंगल को अगर हम देखें तो देयरफॉर अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसको तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? देयरफॉर ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। वाई लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ a circle to a chord bisecting it is perpendicular to chord, ये भाई साहब परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये वाला कितना हो गया भाई साहब आपका 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अभी हम आते हैं भाई साहब कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ओ पी वाई, इन ट्राइंगल ओ पी वाई, ठीक है। आपका ओ वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? ओ वाई का स्क्वायर विल बी ओ पी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, समझ में आता? ओ वाई का स्क्वायर विल बी दिस, तो ओ वाई कितना हो जाएगा भाई साहब? ओ वाई विल बी अंडर रूट ऑफ ओ पी का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया पहला इक्वेशन आपका, ठीक है। ओके, इन ट्रायंगल कौन सा? ओ डैश पी वाई, ठीक है। यहां पे भाई साहब आपका ओ डैश वाई का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो? ओ डैश पी का स्क्वायर माइनस ओ डैश, क्या कर रहा हूं भाई साहब, ये माइनस पी वाई का स्क्वायर है ना, माइनस पी वाई का स्क्वायर, सो दैट विल बी माइनस अगेन एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? ओ वाई, तो ओ डैश वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ डैश पी का स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये ओ डैश वाई है विच इज हाउ मच? 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2। अगर इन दोनों को अपन ने ऐड किया दैट इज ओ वाई प्लस ओ डैश वाई, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है नहीं? समझ में आ रहा है? ओ वाई प्लस ओ डैश वाई, अब भी आपने निकाला कितना है भाई साहब? लेंथ इसका 5 कर सकते हैं भाई साहब ये, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब। 5 का स्क्वायर हो गया ये, 5 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अंडर, सॉरी 5 हो गया भाई साहब, 5 विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ले संभालो भाई साहब अभी।
हाँ, हेरॉन्स फॉर्मूला किसमें, कौन से ट्रायंगल में? थ्री फोर फाइव। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला अगर हमने लगाया तो ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, इसका एरिया अगर हमने हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया तो कितना हो जाएगा बोलो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो 3 4 5 है यहाँ पे, है ना। तो 3 4 5 मतलब आपका सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 3 + 4 + 5, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12/2 दैट इज 6, है ना। ये हो जाएगा 6, 6 - 5, 6 - 4 एंड 6 - 3, सो दैट शुड बी हाउ मच, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सो आपका कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे, 6 3 18, 18 2 36, तो दैट विल बी 6, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है भाई साहब आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी ओ डैश दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अपना भाई साहब हाफ हो गया इंटू बेस, यस दिस विल सॉल्व 5 इंटू हाइट अपने को नहीं मालूम, दैट इज पी वाई है ना, पी वाई है, क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज अगर बराबर होते हैं तो हाफ इंटू 5 इंटू पी वाई दैट विल बी इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा भाई साहब आपका पी वाई का वैल्यू हो गया 6 इंटू 2/5, तो 12/5, 5 2 10, 5 4 20, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पी वाई की वैल्यू 2.4 हो गई, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू विल बी 2 इंटू 2.4, सो दैट इज हाउ मच 4.8, ठीक है। ये सारा सब कुछ मिटाना पड़ेगा हमको बक, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो क्या लिखेंगे भाई साहब, ट्राइंगल ओ पी ओ डैश इज अ राइट एंगल्ड triangle, why, because OP is perpendicular to PO dash, tangent and radius, है ना, tangent and radius, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा OO डैश पहले क्या आ जाएगा, OO डैश का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू OP डैश का स्क्वायर प्लस PO डैश का स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 25, तो OO डैश का स्क्वायर हो गया 25, therefore OO डैश कितना हो गया, √25 दैट इज 5, तो O की वैल्यू आ गई भाई साहब 5, ठीक है, क्लियर है। अभी हमको दो चीजें और करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मालूम है कि परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स bisects their common chord, ये भाई साहब थ्योरम है, bisects their common chord, ठीक है, bisects their common chord, तो इसका मतलब क्या है, OO डैश bisects PQ, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, PY इज इक्वल टू YQ, ये वाला Y है भाई साहब, PY और YQ आपका बराबर हो गया, ठीक है, PY और YQ, देखो भाई साहब ये है आपका P, ये है आपका Q, ये O डैश और ये हो गया O, ये हो गया आपका Y, ठीक है, PY और YQ आपका बराबर हो गया, ठीक है। अभी PY और YQ बराबर है अगर, तो इस सर्कल में अगर हम देखें, ठीक है, इन सर्कल विथ सेंटर O या O डैश भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, PY इज इक्वल टू YQ, PY इज इक्वल टू YQ, ये आपका क्या है भाई साहब ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर OY इज परपेंडिकुलर टू PQ, वाई chord bisector from center is perpendicular to chord, है ना, chord bisector from center is perpendicular to chord, ठीक है, तो OY is perpendicular to PQ, तो OY अगर आ जाता है भाई साहब क्या
परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो अपन यहाँ पे अभी इसको लिख सकते हैं भाई साहब। तो आपका ये वाला हो गया भाई हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी ओ डैश। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी ओ डैश बाई हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी ओ डैश हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी वाई इज, ये पी वाई भाई साहब ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ओ पी ओ डैश। तो इसके हिसाब से इन दोनों को हमने वर्क कर दिया, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे जो आपने लिखा पी क्यू की वैल्यू आई कितनी है आपकी, पी क्यू की वैल्यू आई 4.8। इसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ, ये तो पहले भी हम एक्चुअली प्रूव कर ही चुके हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसको सिर्फ डबल करना था, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस मनम पीपलम? बहुत बढ़िया। चलो वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, फटाक से करना है इसको। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 10 - 6 बी के 4 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो आपका भाई साहब ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए है एक पॉइंट, दैट इज हाउ मच 10 - 6, ठीक है। एंड बी पॉइंट जो है उसका भाई साहब कोऑर्डिनेट क्या है आपका K4 एंड A माइनस बी, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इफ ए बी इज द मिड पॉइंट। ओके, चलिए भाई साहब, तो आपका ये दो पॉइंट्स हो गया, ठीक है। ए और बी आपके पॉइंट्स हो गए, A 10 - 6 और B K4, ठीक है। और यहां पे आपका ए बी इसका मिड पॉइंट है, तो लेट्स से आपका मिड पॉइंट हो गया ए बी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको भाई साहब यहाँ पे ए बी की वैल्यू, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। तो आपको यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? a और b दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उनका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है ए बी, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई साहब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू 10 प्लस k बाई 2, है ना, एंड b इज इक्वल टू -6 प्लस 4 बाई 2, है कि नहीं, -6 प्लस 4 बाई 2। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका -2 बाई 2, दैट इज -1। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, -1, और a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस k बाई 2, ये अपने को नहीं मालूम है, इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो b की वैल्यू निकली और ये a की वैल्यू निकली, substituting the values of a and b in the above equation। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, a की वैल्यू हो गई 10 प्लस k बाई 2 माइनस 2 इंटू बी दैट इज -1 इज इक्वल टू 18, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये कितना हो गया 10 प्लस k बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, सो दैट विल बी हाउ मच 10 प्लस k बाई 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 2 दैट इज 16। तो 10 प्लस k की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 10 दैट इज 22, ठीक है। k की वैल्यू हो गई 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द डिस्टेंस AB। तो अभी भाई साहब k की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, k की जगह पे उसकी वैल्यू डाल के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 22 एंड 4, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस AB विल बी इक्वल टू हाउ मच हम पीपलम, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपलम, y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर
22 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सो दैट इज 100 प्लस 144, दैट इज हाउ मच 244 अंडर रूट, ठीक है। 244 का भाई साहब कर लो यहाँ पे 3 8 नहीं 2 12 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, तो गया 61, 4 इंटू 61, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 61, ठीक है। क्लियर हम तो आपका डिस्टेंस ए बी, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 61। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? हम बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लोग हो, जाओ घर जाके अय्याशी करो भाई साहब।